back to my channel. So after delaying this for almost a year, I think मेरा पुराना वीडियो जो मैंने लगाया था वो 1 साल पहले था इसी किचन का. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए because there are lots of likes on that video and that's my most viewed video till now. So please watch that. लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसा प्लान ही नहीं बना कि मैं यहाँ पर कुछ शूट कर पाऊँ. Also, I was really concentrating on my health, on my mental health, on my lifestyle, and I wasn't really confident whether I am the right person to be speaking about health because I still consider myself very far from an ideal healthy person. लेकिन वो ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी ये है कि हम उस रास्ते पे चल चुके हैं जहाँ पे हमें बहुत पहले चलना चाहिए था. अभी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं और मंजिल तक शायद कभी पहुँचे भी नहीं, बट जस्ट बीइंग ऑन दिस route, on this journey to a healthier lifestyle is so amazing. It is so positive. Of course, weight loss होता है, आप देखने में अच्छे लगते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप जहाँ जाते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. Apart from that, you feel so good from within. Like making this video, I really wanted to make this video for you guys because every time I put up my stories on Instagram or anything that I'm cooking for the kids, you guys ask me for the recipe and you guys ask me how I changed my diet and lifestyle. If you guys know me for some time, you know that I have changed my lifestyle 360 degrees in the last year and a half. In fact, not only me, my entire household has become much healthier. I used to eat a lot of meat, especially red meat. We used to consume a lot of dairy, and now I'm a vegan, which has really helped me in this journey. But even if you're not a vegan, there are lots of things that we talk about, लेकिन हम अपनी lifestyle में उसे include नहीं कर पाते हैं. और सबसे ज़रूरी है ये समझना कि weight loss या हेल्थ जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है. हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए कि बस मेरे 10 किलो कम हो जाए उसके बाद मैं ऐश करूंगी. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता गाइस. अगर आप कोई क्रैश डाइट करते हैं, अगर आप कोई टेम्पररी चीज़ ट्राई करते हैं जिससे आपका वेट लॉस होता है, जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ेंगे आपको पता है आपका वेट वापस आ जाएगा. शायद पहले से भी ज़्यादा वेट वापस आ जाए और आप उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे. For me, it was comparatively easier to change my lifestyle क्योंकि जो हमारा इंडियन फूड है, दाल, रोटी, सब्जी, वैसे तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन अब इतने सालों से हमारे फूड में चेंजेस आ रहे हैं. अलग अलग तरह के घी, तेल यूज़ करते हैं, हम चीज़ों को फ्राई करते हैं, उसमें मसाले बहुत डालते हैं. हम आई थिंक टेस्ट जो वेजिटेबल्स का होता है, हम ओरिजिनल टेस्ट की जगह हमें उसमें मसाले और प्याज और तड़के टेस्ट करने की ज़्यादा आदत हो जाती है. मेरी भी हो गई थी. लेकिन then I went back to the simpler days where there was not so much commercial cooking with your vegetables and with your salads and everything. And trust me, it has changed the taste of a lot of things. जब मैं बहुत ज़्यादा मसाले खाती थी, बहुत ज़्यादा तला भुना खाती थी, तो मुझे कच्ची चीज़ों में बहुत ही कोई टेस्ट नहीं आता था, बहुत ब्लैंड लगते थे. लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कुछ रॉ चीज़ें खानी शुरू करी, सैलड्स खाने शुरू करे, ऑफकोर्स शुरू में बहुत बोरिंग होता है, but really my taste buds in a couple of days started adapting to the new tastes, and now honestly I can just pick up a carrot and chew it. And I feel amazing because it gives me the same happiness that a piece of bread butter would give me earlier. And ultimately, we should eat things that make us happy. So, if healthier things can make you happy, why not? Guys, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं लोग जो आपका ये क्वेस्ट समझते हैं, जो आपकी नीड to live a healthier lifestyle समझते हैं, I would highly recommend please talk to those people. बहुत से लोग जब वो overweight होते हैं, जब मोटे होते हैं, तो उन्हें इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता. वो उनसे कोई भी हेल्थ की बात करता है तो वो एक शेल में चले जाते हैं क्योंकि ये उनका एक बहुत वीक पॉइंट होता है. अगेन आई नो इट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज स्पेशली टू पीपल हु care for you and people who would happily change their lifestyles for you, because that is
what will keep you motivated in your long journey to fitness. So अगर आपके कोई ऐसे friends हैं या अगर आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आपका साथ दें इसमें, तो ये जर्नी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, 1 से भले 2, 2 से भले 3. So please try and get your entire family excited about this new lifestyle that you're going to start and tell them the benefits. अगर आपके घर में कुछ बूढ़े लोग हैं जो बहुत सालों से वही तला भुना और फैट इनरिच्ड खाना खा रहे हैं, भले ही वो मोटे ना हो लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हेल्प हो सकती हैं एक न्यूट्रिशनल डाइट से. आप उन्हें समझाइए. आप अगर एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को समझाइए, जैसे मैं सारा दिन समझाती रहती हूँ. कभी वो मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज दैट वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन एंड वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड, in a particular type of food, because ultimately that is what keeps us going in the long run. Moreover, जब हम weight loss की बात करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए. हमें बर्गर नहीं खाना चाहिए, हमें पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए, हमें केक नहीं खाना चाहिए, हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, हमें मैदा नहीं खाना चाहिए एंड सो ऑन. लेकिन आई थिंक नहीं से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे जो हमें खानी चाहिए. बिकॉज पहली बात तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है. आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बात करिए. जो आप कर सकते हैं उन चीज़ों की बात करिए, जो नहीं कर सकते उन चीज़ों की बात मत करिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हट जाएंगी. दूसरी चीज़, जब आप हेल्दी चीज़ों से अपना पेट भर लेंगे और हेल्दी जब न्यूट्रिएंट्स आपके माइंड में पहुंचते हैं तो उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जिससे आपको क्रेविंग्स नहीं होती. प्लीज रीड अबाउट इट. जब आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं अनहेल्दी खाने की तो एक बनाना खाकर भी उतने ही खुश होते हो जितना शायद आप एक पिज्जा स्लाइस खाकर होगे. ट्रस्ट मी, इट हैपेंस. गाइस, हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट्स. I'm not a dietitian. I'm not even somebody who's trained enough to talk on this. But again, I've done a lot of study and with personal experience, I know that it's very important to keep in mind कि आपकी इन चीज़ों का बैलेंस कैसा है. ऐसा भी होता है कि कई बार लोग जब फिटनेस में होते हैं, जब वो जिम जाते हैं तो वो प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं, उसके साथ फाइबर कम लेते हैं या उसके साथ हेल्दी फैट्स नहीं लेते और उनकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ऐसे भी लोग हैं जो कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं और थोड़े बहुत कार्ब्स हमें ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, लेकिन वही कार्ब्स जब हम एक्सेस में खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं. देन देयर इज समथिंग नोन एज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सिंपल कार्ब्स. सो वी हैव टू make sure that we are consuming complex carbs and stuff like that. Again, I'm not getting into the details, but what I'm trying to say is that it's important to see your plate as a fuel. जब आप अपनी एक प्लेट देखें तो आपको देखना चाहिए कि उसमें फाइबर कितना है और उसमें कार्ब्स कितने हैं, उसमें प्रोटीन कितना है. ये सारी ही चीज़ों का एक बैलेंस होता है जो हमें अपनी बॉडी में डालना होता है. गाइज, आपको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है. ट्रस्ट मी, I can never stay hungry. I don't stay hungry at all, and I don't think anybody who has an active lifestyle, who's into gymming and working and stuff, can remain hungry for very long. If you fill your stomach again with all these components in the right ratio, तो आपको भूखे रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा खूब सारा खाना खाने के बाद भी. Yes guys, it is true. And another very important thing is to keep checking your BMI. अगर आप overweight हैं तो प्लीज़ अपना body mass index calculate करिए. देखिए कि आप उस that line of underweight to obese में आप कहाँ fall करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक reality check. अपने आप टेस्ट कराइए अगर आपने कभी अपने टेस्ट नहीं कराए हैं फैटी लिवर का, या अगर आप एक फीमेल हैं जो अपने मिड 20s में हैं, आप प्लीज़ PCOD का टेस्ट कराइए, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़. आई हैव इट टू. एंड जब आप ये चीज़ें कराते हो तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि आप अपनी बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हो विद द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी. एंड लास्टली गाइज, अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज़ है
जो आप चेक में नहीं रखेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल कभी हेल्दी नहीं हो सकती, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली स्ट्रेस. Yes, guys, I cannot stress enough on the word stress and what negative effects it has on your health. In fact, according to a survey, every second Indian has anxiety. Anxiety and stress go hand in hand. तो अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, जनरली चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, दिन भर आपका मूड ख़राब रहता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा स्माइल नहीं करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, या अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उन्हें प्लीज़ ये वीडियो दिखाइए. एंड अगर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की या कोई चीज़ बार बार ठीक करने की बार बार मन होता है, तो दैट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी. एंड जब तक आप इसको चेक में नहीं लाएंगे तब तक आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं हो सकती, बिकॉज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपको बहुत इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, आपका पेट निकलने लगेगा, आपके बाल गिर सकते हैं, आपके बाल जल्दी वाइट हो सकते हैं, आपकी स्किन में एक्ने हो सकता है, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, जैसे कि बॉल्डनेस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देन उसके बाद हाइपरटेंशन एंड सीरियस इश्यूज बाद में आ जाएंगे अगर ये सालों तक अनचेक्ड रहा तो. सो प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक, because only a healthy mind can lead you to a healthy body. अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट. इफ़ यू थिंक आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए या आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर आपको लगता है आप उससे चेक में लाना चाहते हैं, प्लीज़ स्पीक टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि ये सब कुछ करना बेकार है जब तक आप इसको कंट्रोल ना करें. So please make sure that you keep your stress and anxiety in check. Be happy, keep smiling, enjoy your food, be happy.